थोड़ा बताएं, और जब अप्रोच किया गया तो क्या रिएक्शन था फिल्म को लेके, क्योंकि थोड़ी सी डार्क भी है, थोड़ी सी बोल्ड भी है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग एक एक करके अगर बताएं? You want to start? You can start. Okay. I'm playing as Maya, as you know. और इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. शी इज़ अ ड्रग एडिक्ट. सो जो कि नॉर्मली इंडस्ट्री में होता है, लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं. सो वो मेरा कैरेक्टर है, लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शेड्स हैं. एंड आई लव दिस कैरेक्टर. मेरा कैरेक्टर का नाम सिम है, और सिम भी एक ड्रग एडिक्ट है इसमें. एंड आई लव्ड वर्किंग विथ राम राजा सर, एंडी सर एंड माया. थैंक यू. ये इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं माया. जो एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा था, फैमिली विद जैसा था. सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. एंड हमारे डायरेक्टर जब भी ऐसे कोई सीन्स होते थे तो ज़्यादा किसी को रखते नहीं थे वहाँ पे सेट पे. What about you? I am with her. ओके. एंड सेट का ऐसा सेट पे किस तरह का माहौल रहता था, क्योंकि बहुत सारी लेडीज देखी मैंने फ्रेम में, किस तरह का माहौल रहता था, अगर उस बारे में कुछ बताया तो? सेट पे फ्रेंडली माहौल होता था, क्योंकि सी वी हैव टू परफॉर्म. ठीक है, वो बोल्ड है, वो नॉर्मल डायलॉग्स भी है, वी हैव टू परफॉर्म. तो उसके लिए योर वेदर शुड बी फ्रेंडली, कि हाँ आई शुड नॉट फील एंशियस. मैं फ्रेंडली हूँ, आई एम लाइक मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, दैट आई कैन परफॉर्म वेल. अपन ना कितने एपिसोड्स होंगे और कौन से दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ पर? वेब मूवी. ये Okay, इसमें एपिसोड्स नहीं रहेंगे. ओके. 1 आवर ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स की ये मूवी है. ओके. एंड कौन सा प्लेटफॉर्म को टारगेट करें आप लोग, और कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है? MX पे. एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ पूछना? डन. थैंक यू सो मच. Thank you. के बारे में बताइए. और सर आपने जो राइटिंग भी की है, क्या थॉट प्रोसेस था इस तरह का सब्जेक्ट सबके सामने लाने के पीछे, और थोड़ा सा बताएं फिल्म के बारे में. Well, thank you very much. I am Andy Arora, Mr. Ram Raja Dwivedi. Well, my meeting with Ram Raja Dwivedi in Amsterdam was a break event for me. When I met him, he proposed me a movie. He said that yes, character, that yes, you can do it. I said it's my pleasure, but I don't know whether I shall be able to do it or not, because I had been a stage artist, but coming in movie is something different. But he was so confident. He was so confident that I could not stop myself, and I had to come to Bombay. When I came to Bombay, I was really feeling whether I shall be able to perform or not. But then I am thankful to my producer, Aparna Paranjape, who really motivated me, and she is my inspiration. And when I was sometimes feeling nervous or something like that, she was telling me, you can do it, try. And I tell you, once or twice she guided me, and that became a boon for me. She is a wonder girl, and whatever she told me, I started following it, and then I could do it also. And Mr. Ram Raja Dwivedi is a magician. Magician in the sense, he is a person who is a very soft-hearted person, but a very hard director. You know, if you are performing and you are not performing well, or you have to do second time, he will never excuse you. No, He will this is fire a like lie. anything. This is a lie. He will fire like anything. And then he is like a ringmaster. When ringmaster, you know, even the lion follows him. So we followed, and he took out all the best out of us. I say us because yes, he was conducting the direction. He's a wonderful director, and I wish him also all the best, because he is the one person who is a masterpiece director. I had kept his name once. Can I tell? Please go. I told him only a perfect director can do this thing, who has seen the world at large, and he understands even the minutest thing which is there. But then I kept his name Barbad. I said, you give your title as a director Raja Barbad, but you know, Barbad is the one name which cannot be given. It was just a joke, but fantastic person. Right.
सर व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? इतनी सारी तारीफ तो इट हैज हमने बीन सुनी है। अ लवली जर्नी अरोड़ा साहब। ये पूरे एडिक्शन परिवार की एक बड़ी अच्छी जर्नी रही है। जब हम लोग शूट करते थे कहीं से ये नहीं लगता था कि हम लोग शूट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इसमें 6 लड़कियों के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे, प्रोड्यूसर खुद एक फीमेल थी, तो बहुत ज़रूरी था कि आज का टाइम रखते हुए भी कंफर्टेबल रखा जाए, तो बड़ा अच्छा माहौल था। तो सर इसके अलावा जब आपने पहली बार अपर्णा जी को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया तो क्या रिएक्शन था उनका, और कैसे ऑन बोर्ड आया आप दोनों एक साथ? अगर उस बारे में कुछ बताया हमारी ऑडियंस को, थोड़ा सा आगे आ जाइए। उनका रिएक्शन यही था, माया वाला कैरेक्टर मैं करूँगी। ओके एंड जैसे मैंने आगे भी पूछा था कि बहुत सारे बोल्ड सीन्स हैं, तो वो नहीं, कितना चैलेंजिंग रहा? बोल्ड सीन्स नहीं है, बोल्ड सीन्स नहीं है, लैंग्वेज बोल्ड है, एटीट्यूड बोल्ड है, कोई बोल्ड सीन नहीं है। ओके और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे आपने कहा कि 6 लड़कियां थी ऑन सेट, एज अ डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप कैप्टन ऑफ द शिप भी थे। और चैलेंज तो देखिए लड़कियों चैलेंज तो सेम रहता है, उसमें कोई वो नहीं है कि ये किसी भी मेक बिलीव आर्ट को हम कुछ कागज़ पे लिखते हैं, उसको ऑडियंस के सामने लाते हैं, तो वो चैलेंजेस वो सेम रहते हैं, कोई फर्क नहीं, ओके कोई फर्क नहीं। और अगर टाइटल के बारे में बात करें एडिक्शन, तो उसके बारे में बताइए कौन किसने सजेस्ट किया था, और अगर उस बारे में कुछ बता पाया? क्योंकि बहुत कैची टाइटल लग रहा है ये। बड़ा ये टॉपिक के ऊपर टाइटल रखा है। जी, ये टाइटल एक्चुअली 3-4 चीज़ों से मिलके बना था। ये कहानी अलग अलग सब प्लॉट पे थी, पहले वैसे बनाई गई, सब मिलके लगा ये क्या है, लक ही तो लगी है। अच्छा, ये नाम के बाद कंपनी का नाम रखा गया है कि पहले कंपनी का नाम था फिर टाइटल है? ओवरडोज इनकी कंपनी थी ओवरडोज नाम से पहले से। उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट है आपने? नहीं, ओवरडोज पहले थी, एडिक्शन बाद में आई। नहीं मतलब कॉन्सेप्ट और नाम नहीं के नहीं, ऊपर- हम लोगों के मिलने से पहले मैं कहानी बना चुका था, ये ओवरडोज में थे। सर इसमें कोई बॉलीवुड की कोई ग्लिम्स दिखेगी? जैसे बॉलीवुड बहुत। में भी अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे, बहुत सारे लोगों को समन भी किया गया। बहुत। जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है माया का, जो अपर्णा जी ने प्ले किया है, वो सेंट्रल कैरेक्टर ही एक ऐसी हीरोइन का है जो एक बार पीक पे पहुंच के डाउन हो चुकी है। नाउ शी इज कम्प्लीटली इनटू ड्रग्स, इंडस्ट्री उसे भूल चुकी है, और वापस से वो सिर्फ खुद को ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो वापस से इस इंडस्ट्री और इस शहर को जीत सकती है। Right. और ड्रग्स और ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, क्या कोई मैसेज देगी फिल्म ड्रग एडिक्शन को लेके? एडिक्शन गलत है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन गलत है, ये मैसेज तो रहेगा। लत है, गलत ही है। तो सर बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग्स वगैरह आपने सब चीज़ें दिखाई है, कहीं ना कहीं कोई डर भी है कि कहीं ऑब्जेक्शन हो जाए या किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी हो जाए? क्या लगता है आपको इस बारे नहीं में? सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। हाँ, ये बॉलीवुड वाले तो नहीं, आजकल कंट्रोवर्सी वो अपने नारकोटिक्स वाले ज़्यादा करते हैं, बॉलीवुड वाले तो बेचारे सब सीधे लोग हैं। क्योंकि बॉलीवुड में वैसे भी बायकॉट ट्रेंड चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या रवैया रहता है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बॉलीवुड बहुत ही मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में अगर कोई प्रोफेशन और इंडस्ट्री सबसे अच्छी है तो वो हमारी इंडस्ट्री है। यहाँ ना जात पात, धर्म, मजहब, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आपका काम बोलता है, अगर आपने काम अच्छा किया, और जज ऑडियंस है सामने। सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा? जैसे एंडी सर ने किया, लाजवाब, सब ने अपना बेहतरीन से बेहतरीन किया। एंडी सर ने अपना सबसे अच्छा किया। अब ये दोबारा ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सबके कैरेक्टर काफ़ी बोल्ड, डायलॉग काफ़ी दमदार। हाँ सर, कैरेक्टर बोल्ड हैं, डायलॉग्स दमदार हैं, क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे हैं, सारे कैरेक्टर्स अपनी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे हैं कि उनकी सिचुएशन करो या मरो की है, तो सारे कैरेक्टर्स बहुत। फिल्म की रिलीज का क्या प्लान है सर? कब तक देखने को मिलेगी ऑडियंस को ये? सर अगले महीने अगले अगले महीने ये मोस्ट ऑफ दी OTT प्लेटफॉर्म्स पे होगी, 1-2 को छोड़ के, और जितने भी तरीके हैं ऑडियंस तक पहुंचने के, हम लोगों ने वो सारे मुकम्मल किए हैं कि हमारी फिल्म ऑडियंस तक पहुंचे। और हमारी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार फिल्म देखिए ज़रूर, इतनी बुरी नहीं है, वन टाइम वॉच लगेगी ही आपको। मैं नहीं कह रहा कि रामगढ़ हमने कोई शोले बना दी है या कोई बहुत अच्छी फिल्म बना दी है, लेकिन बुरी नहीं है, कुछ नया देखने को मिलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको अच्छा लगेगा। एंडी सर, आपका कोई मैसेज है ऑडियंस के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज इनके लास्ट मैसेज है, और अगर आपका मन बार बार देखने का करे तो बार बार देखिए एडिक्शन, बिकॉज एडिक्शन का भी एडिक्शन होगा आप लोगों को।
I'm confident at least. Addiction word itself predicts and indicates that yes, it's an addiction. Addiction का addiction अगर है तो आप देखेंगे ही, दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, चौबारा देखेंगे, मल्टीपल टाइम देखेंगे, आप उसको रिकमेंड करेंगे, आप कहेंगे कि फ्रेंड्स दैट इज अ मूवी, गो एंड सी, एंड दैट टाइम आई शैल बी रियली हैप्पी टू मीट आवर डायरेक्टर बर्बाद, राम राजा बर्बाद, वीडियो अपॉलॉजी। थैंक यू वेरी सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अजय, मैं पूछना चाहूंगा आपका इस फिल्म में बेस्ट डायलॉग कौन सा है? जो आपने अभी देखा वो आप अब मुझे मजबूर कर रहे हैं सबके सामने बोलने में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अच्छा, उसके अलावा तो बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि वाकई मेमोरेबल है। उसमें कोई जैसे मैंने एक डायलॉग कहा है, तू ये ड्रग्स छोड़ क्यों नहीं देती माया। माया ने कहा मैं खुद एक ड्रग्स, मेरी ड्रग कैसे छोड़। आई थिंक दैट वॉज द परफेक्ट डायलॉग। एंड देयर वॉज वन मोर डायलॉग। There are many dialogues. I tell you, if I start speaking, I will have to narrate whole movie. I remember all the dialogues of all the dialogues of all the characters Yes. of addiction. ये पिक्चर बनने के बाद इनको याद है, शूटिंग के टाइम नहीं याद रहे। You can ये प्रॉब्लम होती है हम लोगों के shooting के टाइम में प्रॉब्लम ये होती है कि you have to be specific and particular, and you have to perform. When you have to perform, you back of the mind में you think, but you have to speak the dialogues with flow and the accent. If you are simply speaking, you are not at all an actor or actress, because we cannot be just that we are speaking the dialogue. So speaking the dialogue is the one thing, as he has rightly said, but it has to be spoken with the character. थैंक यू। फिल्म देखने के बाद में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो अनुराग कश्यप की जिस तरह फिल्में होती है जी, डार्क, तो वैसा कुछ फील इसमें दिख रहा है। और तो हाँ। फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई, कैसे कैसे शूट किया? फिल्म की शूटिंग बॉम्बे में हुई है, जयपुर में हुई है, उदयपुर में हुई है, गोवा में हुई है। इन 3-4 जगह शूटिंग हुई है। और ये फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत ही, हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी खास तरीके की फिल्म है, ये किसी फिल्म मेकर से मिलती है। ये असलियत बहुत ही शांत तरीके से एक ऊहा पोह वाली और खलबली वाली चीज़ को बड़े शांत तरीके से कहा गया है।